Krishna, Hemangini. I can see the names, whichever names I can see basically. Priya, Karthik, Abhishek, Rasika, Pooja. So let's start off with lecture number 8. Okay. So I hope you have followed up with the other lectures. Yeah. So I hope all of you are following up with the other lectures. Yes, Yan. I don't know who this is. Somebody's hi, whoever that is. So, you can follow my channel. I have put the link in the chat box. So you can follow it so that, you get all the videos. The link I have put in the chat box. Okay. So that way it will be better. Okay, so can I kickstart the lecture? Can I start off? So this is lecture number 8 of electrostatics, and we are going to look into, we've already seen electric dipole, the basics of electric dipole. You remember what electric dipole was? Yes, good evening, Prathamesh. So we have what is electric dipole. We have seen its presence in electric field and so on. So this is a very important concepts of the chapter. Right now, we are going to do some derivations today. So are you ready? We have 3 derivations. It's going to be a quick lecture, but we need to understand the derivation because we have to find the electric field expression for the electric field intensity of an electric dipole. So the today's first derivation is the expression for the electric field, the expression for the electric field intensity of an electric dipole on the dipole axis. So we're going to check out first what is the electric field intensity at a point on the dipole axis. So this is the expression for electric field intensity. That means E bar of an electric dipole on the dipole axis. So like yesterday, I think we had the lecture, right? So this is minus Q. This is plus Q. If you remember, this is how we represent the dipole. There is a line which will pass through both the dipoles. So this is called as the axial line. Axial line. Yes, I'm taking a point on the axial line. So let's say I'm taking a point P on the axial line. And this is the center of it. From the center to the point P, I have to take it as R, right? Just draw this 1 minute, just a minute. और सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L होगा और सेंटर से लेके -2 ये भी L होगा. ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन -Q एंड +Q इज गोइंग टू बी 2L. करेक्ट? प्लीज मेक द डायग्राम.
Hello. Yes. Are you there? Have you finished drawing the diagram? Okay. So everybody has finished drawing the diagram. Okay. Shall I wait? Okay, I'll wait. Okay. P is the electric dipole moment, beta, Dipesh. Electric dipole moment, yeah. Okay. Yeah. So I will share even some websites with you next time so that you can, go through those websites, which will also help you equally. Okay. So now I think there is something mentioned in your textbook. Have you gone through it? I have seen some. I have not checked them out, but I will check them out. And at the end of every chapter, they have given you some internet resources. Have you checked out that? Have you checked it out in your textbook just before we start off with? Yeah, check it. It's just before, like at the end of every chapter, there is a small box which is given with the different websites. So yeah, internet, my friend, correct. Internet, my friend is given anyway. So let us look at the electric field. So first point you can write of the derivation. What is the electric field? The electric field at point P, at point P due to due to due to positive Q. So I'm going to look at electric field at a point due to positive Q. So what is the electric field due to positive Q? You know electric field formula, right? Everyone knows what is electric field formula. So electric field due to positive Q, which I can write as E1, for example, is going to be, electric field formula is 1 upon 4 pi epsilon naught. What is the charge there? Q. अपॉन मतलब हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम P पॉइंट पर ढूंढ रहे हैं कि कितना असर होगा हमारे प्लस Q का कितना असर होगा, आप मुझे बताओ. ओके अब समझ रहे हैं ना व्हाट वी आर डूइंग. आप मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q एंड P. एनीबडी? यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, राइट? तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड. सो एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली. इट इज R minus L the whole square. Agreed? Everyone? So this is the electric field intensity at a point P due to positive charge. Similarly, I'm going to find out what is the electric field intensity due to negative charge. याद है लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसा बोला था कि पॉइंट P लेंगे, फिर P का असर उस पे देखेंगे, फिर Q का असर देखेंगे, फिर उधर रिजल्टेंट देखना पड़ेगा. तो वही कर रहे हैं. So the second condition is to find because of minus Q. Just finish this off. Just finish it off. Just finish this equation. Just tell me when it is done.
we will find out the electric field due to plus Q. What have you not understood, Pooja? Because yesterday I have already mentioned. We are finding out what is the effect of the electric field around any charge. There is going to be electric field, and we are basically going to find out what is the effect of electric field at that particular point. मतलब उसको कितना असर पड़ेगा उस पर, क्योंकि Meg, we are not talking about force here. We're talking about electric field. Read the question. It says expression for electric field intensity of an electric dipole. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना असर पड़ता है इन द सराउंडिंग, वो देख रहे हैं हम लोग. तो पहले हमने पॉइंट पी का प्लस क्यू से देखा क्योंकि प्लस क्यू के नजदीक है. नाउ वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ माइनस क्यू. अभी माइनस क्यू का असर कितना होगा पॉइंट पी पर. प्रिया, हैव यू अंडरस्टूड? आई एम वेटिंग फॉर प्रिया टू रिस्पॉन्ड. कैन आई गो फॉरवर्ड? Yeah. So now I'm going to find out what is the electric field at the point P due to minus Q. That's the formula, beta Manish. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. R के बदले यहाँ R माइनस L आएगा क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस R माइनस L. एक्चुअल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लेक्चर नंबर 6. Yeah. Okay. So now let us start with the next one. Okay. So people have already started typing. Okay. So second equation is, so Ram has already typed the whole expression there. So electric field at point P, कितना असर पड़ेगा? At point P मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? माइनस क्यू है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. प्लस क्यू है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. बट ये पॉइंट पी यहाँ लिया है हमने. पॉइंट पी तो देखना है कि इसका असर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी सिंपल. अगर आग कहीं पे जल रही है, तुम आग के पास खड़े हो तो तुमको ज्यादा इफेक्ट फील करेगा, राइट? सो एग्जैक्टली लाइक दैट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर माइनस क्यू की वजह से हमें ढूंढना है तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्या होने वाला है? माइनस क्यू तो आएगा बिकॉज चार्ज वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, विच इज ऑपोजिशन. बट डिस्टेंस कितना लेना है? माइनस क्यू से लेकर इस पॉइंट पी तक कितना लेंगे? ओके, सो आई हैव एवरीवन आंसरिंग करेक्टली. हिमांगी, सानिया, महक, राम, एवरीवन इज आंसरिंग. दिस इज R plus L the whole square. R plus L the whole square. इसके मतलब मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव की वजह से और दूसरा नेगेटिव की वजह से. अगर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से है, इसका मतलब है मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना पड़ेगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर्स आ रहे हैं. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E bar is equal to E1 bar plus E2 bar. What is the effect of both of them? So I'm just substituting whatever I already have. 1/4 pi epsilon naught. ये क्या था? Plus Q upon R minus L the whole square plus 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R plus L the whole square. जैसे कि मैं हमेशा पूछती हूं कि किसका असर ज्यादा है, प्लस क्यू का कि माइनस क्यू का? वेयर इज द पॉइंट क्लोजर टू? इट इज क्लोजर टू प्लस क्यू. तो इसीलिए प्लस क्यू हमें पहले लिखना है. समझ रहे क्या? उसको जानबूझ के पहले लिखा गया है क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है, ध्यान से देखना, जिसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है उसका फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जिसके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आता है,
प्लस आ रहा ना, इधर प्लस आ रहा है, तो उसका फ्रैक्शन कम रहेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? डिनोमिनेटर अगर आपका छोटा है तो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, यानी कि E1 इज ग्रेटर देन E2. डू यू एग्री? E1 is greater than E2. So now point number 4. I'm writing point number 4 here. So what I'm going to do is ये जो expression है आपका ई बार, इसमें कुछ common निकल के आ सकता है. क्या क्या common आएगा? 1/4 pi epsilon naught. It's not like that, Nusrat, it matters like who we write first. Okay, 1/4 pi epsilon naught. I mean, in the long run, you'll understand why I said that. Okay. So 1/4 pi epsilon naught Q अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है 1/r minus l the whole square minus 1/r plus l the whole square. आप समझ रहे ना? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. मतलब द नेट रिजल्टेंट में देखो, अगर दोनों एक बराबर के होते या दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता तो मुझे वो माइनस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. आप समझ रहे मैंने माइनस क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि ये रियलिटी है कि E1 ग्रेटर देन E2 है. आर यू गेटिंग इट? वेक्टोरली दो मैं यहाँ प्लस लिख रही हूँ और आपको लग रहा है कि ऐड ही तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली E1 E2 से बड़ा है. आर यू गेटिंग इट? यानी कि एक्चुअली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम नेट रिजल्ट में E1 माइनस E2 ही कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इट चिल्ड्रन? समझ में आ रहा है? नहीं तो वो माइनस कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है सानिया. E1 इज ग्रेटर देन E2 क्योंकि जिसका डिस्टेंस बड़ा होता है उसका इफेक्ट कम होता है. अरे हे भगवान, क्या होगा इस देश का? मैथ्स पढ़ के नहीं आते तुम लोग? मैथ्स स्किप किया क्या तुम लोगों ने? यहां से डिस्टेंस कम है और यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, तो किसका इफेक्ट E1 पर पड़ेगा? किसका इफेक्ट E1 पर पड़ेगा? प्लस क्यू का. अरे दिमाग लगाओ ना, अगर एक वेक्टर का इफेक्ट ज्यादा है दूसरे वेक्टर से तो रिजल्टेंट में देखो, व्हाट इज डाइपोल का डायरेक्शन? माइनस टू प्लस, तो ये भी माइनस टू प्लस ही जाने वाला है. बट E1 विल बी मोर एंड E2 विल बी लेस. यानी कि E1 ऐसा होगा, E2 ऐसा होगा, तो आप क्या बोलोगे? E1 माइनस E2. वेक्टर क्या बताता है आपको? वेक्टर आपको बताता है कि इधर 10 है और इधर 4 है, तो आपका आंसर क्या है? 6 है. या करेक्ट है या उल्टा जाना चाहिए? If they are one greater than the other, then we are going to take it as one is greater than the other. Beta, don't get confused. If that is confusing you, leave it. Mathematically jate, leave it. Otherwise, you all will get confused. So just minus to plus जा रहे हैं. Keep it as it is, as you are considering it. Anyway, वो negative होने ही वाला है. मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बताते हुए कि E1 का इफेक्ट E2 पे ज्यादा होगा, मतलब अगर लॉजिकली आप सोचते हैं तो इसलिए वो E1 प्लस E2 जो भी आप कर रहे हैं वो नेगेटिव ही होगा एट द रिजल्ट. एनीवे दैट्स ओके. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. अब देखो, हाँ हाँ छोड़ दो उसको. ठीक है, आराम से. लाइफ इज ब्यूटिफुल. हाँ, R प्लस L द होल स्क्वायर. यस राम, डिस्टेंस बड़ा है बेटा, बट डिस्टेंस बड़ा है ना तो इफेक्ट कम होगा ना राम. Yes. So R plus L the whole square minus R minus L the whole square upon R minus L the whole square into R plus L the whole square. Okay? ये कुछ ऐसा दिखेगा. यहां तक लिखो, फिर मैं आप सॉल्व करेंगे. न्यूमरेटर ओपन करेंगे ब्रैकेट को. ओपन करके देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है.
ओके, न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है भाई? न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है? कैन आई इरेज सम पार्ट ऑफ दिस हियर? आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट. Yes, so some are getting that in the numerator. Very good. Nishant, Asif. So यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught, अगर आप इसको खोलते हैं तो आई होप यू आर गेटिंग 4 RL. बाकी सब कैंसिल हो जाता है. आ रहा है क्या 4 RL? एवरीथिंग इज कैंसिल बिकॉज इट्स लाइक, और डिनोमिनेटर में बचेगा R² - L² द होल स्क्वायर. आर यू गेटिंग दिस? ये आपको मिलना चाहिए. एवरीवन इज गेटिंग? a plus b the whole square minus a minus b the whole square. अभी सुनो क्या होता है कि ये जो q है, you remember dipole moment का formula? What is dipole moment का formula? What is dipole moment का formula? P is equal to, yes, it is 2ql. ओके, अब मैं क्या करने वाली हूं कि ये जो 4 है, 4RL है, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा 2 into 2RL चलेगा? 4RL को लिखा 2 into 2RL. इसमें से Q को उठाओ और 2L को उठाओ. ठीक है, व्हाट इज Q into 2L? 2QL क्या है? 2QL is P. So now I am going to replace it by P. So what will I get my electric field formula? I am getting 1/4 pi epsilon naught. Are you getting 2PR upon R² minus L² the whole square? I hope all of you are getting this. ये एक्सप्रेशन आपको मिलना चाहिए. 2PR बचेगा ना ऊपर, 2 into Q into L को P डाल दिया. So you should get this expression. मिल रहा है? लास्ट स्टेप में 4RL को 2 into 2, 4 को 2 into 2 लिखा. तो लास्ट स्टेप में जब 4 को 2 into 2 लिखा तो Q, L और 2 को P कर दिया. बस उतना ही है. डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर दिया. The last step I have just replaced. इतना क्या है गाइज? 4 को 2 into 2 लिखा, बचपन में पढ़ा था. 2 into 2 is 4. और फिर मैंने 2QL क्या है, मैंने क्या बोला? 2QL जो है वो P is equal to क्या है? 2QL होता है ना, तो 2QL के जगह पे मैंने P सब्स्टिट्यूट किया. नहीं कर सकते क्या? मैथ्स में तो वी नो दैट करके कितना सब्स्टिट्यूट करते हो यार. ये सुनो, समझा? ओपन किया ना ब्रैकेट सौरभ. R plus L द होल स्क्वायर क्या होगा? R plus L द होल स्क्वायर क्या होगा भाई? R plus L द होल स्क्वायर क्या होगा? R² plus 2RL plus L² minus R² minus 2RL plus L². फिर इसको ओपन करने का, इसको ओपन किया तो क्या होगा? ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या होगा तेरा? ओपन किया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा. ये सुनो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. करेक्ट? अगर ये माइनस हुआ तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा? 4RL ना. अभी समझा? भी क्लियर है? यस और नो? सो न्यूमरेटर ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए. तो बेसिक मैथमेटिक्स है, बिकॉज it's always and it's the same thing, like a plus b the whole square minus a minus b the whole square will become 4ab. अब मेरा आपसे सवाल है, हु इज बिग, R और L? कौन है बड़ा, R की L?
ऑब्वियसली आर इज बिगर। एल क्या है यार, एक छोटू सा जो हमारा डाइपोल है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था राइट, एक छोटू सा डाइपोल है अपना, एक छोटे से डाइपोल के प्लस और माइनस के बीच के छोटे से लेंथ को एल बोलते हैं, एकदम स्मॉल लेंथ। इसका ये मतलब है कि हमारा जो हमारा जो आर है it is greater than L. That means I can say R square is very much greater than L square. याद है मैग्नेटिज्म में भी ऐसे करते थे, अगर आपको याद है डेरिवेशन। तो हम किसको नेग्लिजिबल बोलेंगे? हम इसको नेग्लिजिबल बोलेंगे, किसको? L को नेग्लिजिबल बोलेंगे, डिनोमिनेटर से उड़ा देंगे उसको। So as R is greater than L and therefore R square is very much greater than L square, we neglect L in the denominator. L को निग्लेक्ट कर देते। अगर वो L को निकाल दिया डिनोमिनेटर में तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आई होप यू हैव अ नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r, L को निकाल दिया तो ये हो जाएगा r⁴, बराबर है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है। सो r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r⁴ हो गया। तो इसमें आप देखोगे एक r कट गया, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला मिल रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p upon r cube. You know, this is same like how you used to get magnetic field, B axis. mu0/4 pi 2m upon r cube मिलता था वहां पे। कैपिटल M की जगह पे यहाँ P है, where P is equal to 2ql, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। So this is the electric field, you know. So we are making some approximations here. You know, we are making some approximations that dipole is very small in size and therefore L is very small compared to R. हम ये बोल रहे कि L का जो width है वो compared to R बहुत ही छोटा है, इसलिए हम L को neglect कर रहे हैं, इसलिए हमें 2p upon R cube मिल रहा है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेट्स गो बैक टू द डायग्राम। किसका इफेक्ट ज्यादा है? प्लस क्यू। और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? माइनस टू प्लस, यस और नो? तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस टू प्लस होगी, माइनस टू प्लस ही जाएगा ना, जो P का डायरेक्शन रहेगा वही E का डायरेक्शन होगा। सो यस, जस्ट लाइक मैग्नेटिज्म में हम बोलते थे साउथ टू नॉर्थ, सो वी कैन से ये इसका एक नाम दे देते हैं एक्सिस, बिकॉज ये एक्सियल पॉइंट पे हमने लिया है। सो ई एक्सिस इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू बिकॉज इट इज अलोंग द डाइपोल डायरेक्शन। डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? डाइपोल की डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, ये उसी डायरेक्शन में आएगा ना, माइनस टू प्लस के डायरेक्शन में ही ये जा रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज डाइपोल डायरेक्शन कैसा है? माइनस टू प्लस, तो ये उसी डायरेक्शन में उसी लाइन में है। सो वी कैन से इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। पॉजिटिव से वैसे भी चार्ज निकलता है, राइट? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पॉजिटिव से ही निकलता है। सो कैन आई से that the effect of P is more? So both ways you can think. Either point P is along the dipole moment direction, or you can think that plus Q का असर ज्यादा है तो वैसे भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही होगा। समझ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट मतलब माइनस टू प्लस। इज द डायरेक्शन अंडरस्टूड एवरीबडी? इज द डायरेक्शन अंडरस्टूड? क्या बोला आपको? क्या बोला आपको? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, राइट? यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट किसके नजदीक है? प्लस क्यू के। प्लस क्यू का लाइन कैसे आता है? बाहर आता है, बिकॉज आपको पूछा बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है, तो ये प्लस क्यू से निकलता है। अगर ये प्लस क्यू से निकलता है इसका मतलब है इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने बताया था ना आपको E1 का इफेक्ट E2 से ज्यादा होगा,
यानी कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज नेगेटिव टू पॉजिटिव. So I hope that is clear. Clear everybody? Have you finished writing this? ये slide लिख के हो गया? Okay, have you written this slide? ये previous slide सबका हो गया, right? ये previous slide. Yeah, okay. So I can go to the next slide. ये लिखे. I'll wait for 1 minute. Some people have not completed. I'm waiting for them. So can I proceed to the second expression? Okay, so let's go to the next expression. The next expression is so from this diagram, now we are going towards the next diagram. So you can write the heading of the second derivation. So derivation number 2 of the day, expression for electric field intensity of an electric dipole on the dipole equator. So what we are basically doing is you can draw this diagram. This is minus Q. This is plus Q. You are already aware this is your axial line. We are taking this point on the equatorial line. So right at the center, let's say this is center. We're taking a point over here. So let's call this point as P. This is on the equatorial line or transversal line. I think last time I told you. Instead of equatorial line, we can also call it as the transversal line. So I'm writing it here. Transversal line.
So I hope all of you have a book in front of you and that you are writing. So that's basically the center. Now what I'm going to do, ध्यान से देखना, पॉजिटिव का असर इस पे कैसा होगा, पॉजिटिव का असर. सो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा ओरिजिनेट होते हैं, तो इसलिए लाइन ऐसा होगा, ऐसे लाइन होगा, राइट. लेट्स कॉल इट एज ई इलेक्ट्रिक फील्ड. और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है, आर डिस्टेंस पे है. ये वाला डिस्टेंस एल है, ये वाला डिस्टेंस एल है, क्योंकि ये हमेशा 2l है, राइट. -2 प्लस हमेशा क्या है, 2l है. अब ये वाला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, कैन आई से इट इज डाउनवर्ड, कैन आई से इट इज डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव से वो टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव से वो ओरिजिनेट होता है, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर ही है. ओके, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर ही है. सो नाउ अगर ऐसा है, so can anybody tell me what is this side? Can I say this is under root of r square plus l square? Can I say this is under root of r square plus l square? Pythagoras साइड समझ में आया? क्योंकि अगर ये वाला नीचे l है और ये वाला r है तो पाइथागोरस लगेगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है. I can say it is under root of r square plus l square. Now let's see, this is the normal. ये नॉर्मल है, राइट. अगर ये नॉर्मल है और ये आपका मान लेते थीटा है, थीटा, कैन आई से दिस इज ऑल्सो थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, यस और नो. और ये भी थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा. इज दैट क्लियर? ये सब सेम है, ये सब थीटा है यहाँ पे. अगर ऐसा है, आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, दिस इज E and it is making an angle here, तो यहां पर can I say it is E cos theta, and यहां पर हो जाएगा E sin theta. I hope you're getting it. यहां पर भी E है, यहां पर एक E है, इसका हो जाएगा वापस इस डायरेक्शन में E cos theta, और इसके नीचे की तरफ आएगा E sin theta. I hope all of you were paying attention. Yeah, everything will be theta. Alternate angles, corresponding angles, everywhere it will be theta, because it's a parallel line. These two lines are exactly parallel to each other, and this is the transversal, right? So we can say that this angle is also theta, this angle is also theta, this angle is also theta, this angle is also theta. समझ में आ रहा है? तो you have, इसमें से कुछ कैंसिल होने वाला है. क्या कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा? Anyone who can think about it? कोई तो कैंसिल होने वाला है, कोई तो कैंसिल होने वाला है. क्या कैंसिल होगा? प्रीवियस बैच ने आंसर दिया था. आपको E sin थीटा दिख रहा है यहाँ पे? आर यू सीइंग E sin थीटा? E sin थीटा एक का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ, और दूसरा E sin थीटा नीचे की तरफ, ये भी E sin थीटा है. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. अगर वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो उसके साथ क्या होने वाला है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ ये लेफ्ट वाले दो वेक्टर्स, बाकी सब कैंसिल हो गया. मतलब ये जो E था, ये जो E था, आपने उसके दो कंपोनेंट बनाए, एक है कॉस और दूसरा है साइन. फिर ये जो दूसरा वाला था, ये जो E था, उसका भी आपने बनाया कॉस और साइन. फिर आप देखते हैं कि ये E sin थीटा जो वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए. आर यू गेटिंग इट? और कितना है टोटल, अभी आपको दिख रहा है कि लेफ्ट में 2 E cos थीटा जा रहा है.
Saurabh, every angle is same, beta, because they're alternate angle. We are assuming some angle here, but that angle will be the same angle that you find here. That will be the same angle here, which you find over here. They'll be all same. That is the construction of this entire diagram. I'm drawing again for those who have not followed. यहाँ पे एक charge है minus q, यहाँ पर एक charge है plus q. So यहाँ पर है minus q और यहाँ पर है minus q और यहाँ पर है plus q. दोनों के बीच में ये एक्सियल लाइन है. एक इक्वेटोरियल लाइन है यहाँ से जो सेंटर से जाता है. इसके ऊपर एक पॉइंट P लिया गया है. P का डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव भी सेम है, फ्रॉम पॉजिटिव भी सेम है. नॉट लाइक एक्सियल. एक्सियल में पता है ना क्या प्रॉब्लम था, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है. हमने एक्सियल में कैसा लिया था, E1 E2 लिया था. इधर आप देखोगे सब E है, क्योंकि ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है. ये वाला डिस्टेंस R है, तो इसका प्लस Q का डिस्टेंस सेम है और माइनस Q का इस पॉइंट पे सेम है. That is, this is also R square plus L square. This is also under root of R square plus L square. Abhi electric lines always originate from positive charge. So they originate from positive charge and they terminate at negative charge. इसलिए दोनों electric field equal होने के बावजूद उनके directions अलग होंगे. एक निकलेगा, एक आएगा. अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. इसके लिए हम लोग पहले क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. अब ये नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सब इक्वल है बिकॉज यू आर कटिंग इट एग्जैक्टली एट द सेंटर. Are you understanding? So this is also theta. अब अगर ऐसा है, then what will happen? What will happen? ये जो E है, जो क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, it will have two components. This will be E cos of theta and it will have a component here E sin of theta, right? ये कौन सा वाला है, जो प्लस Q से आया. जो प्लस Q से आया उसके दो कंपोनेंट बनेंगे. अब जो माइनस Q से आया, मतलब ये वाला जो है, इसके भी तो दो कंपोनेंट बनेंगे. ये यहाँ बनाएगा E cos थीटा, बट इसका 90 डिग्री नीचे की तरफ बनेगा, दैट इज E sin थीटा. अब इस डायग्राम में क्या आपको दिख रहा है, कैन यू सी इन द डायग्राम E sin थीटा हियर एंड E sin थीटा हियर, एंड हाउ आर दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. इसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया. ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गए. अब बचा क्या, बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? E cos theta plus E cos theta, which is very good महक. 2 E cos theta. Yes हेमांगिनी. तो पहले स्टेटमेंट, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करें. I'll give you 1 minute to draw the diagram. Everybody please draw the diagram, then we continue.
Nitin, both the slides are same only, beta. What previous slide? This one. Nitin Pal K99. Yeah, both the slides are almost same, only the heading was here. Is it done? Everyone has drawn the diagram. Can I start with the expression? Okay, I'm waiting. When is the 11th exams, guys? Are they taking an exam in your college? Is it an MCQ based exam? I see. No news. Okay, which college is that? I'm sure Mithibai will inform you. They are the ones. SVPV. TP Bhatia. Okay, I can see TP Bhatia, SVP, Mithibai Thakur. Offline? Which college is taking offline? Okay, Manish says no exam only. Patkar no exam. Patkar is taking offline. St. Arnold's. Anybody from St. Andrews? No. Okay. Saraf has not decided. पास करा दो बोल दो उनको प्रमोट कर दो इन प्रकाश कॉलेज एग्जाम इज डन ओके मतलब क्या अभी अगर ऑनलाइन लेने ही वाले तो प्रमोट कर दो ना हमारा मेन एग्जाम तो 12th में है असाइनमेंट ले लो चलो एक असाइनमेंट लिख देंगे हर एक सब्जेक्ट का हमें प्रीवियस पेपर दे दो हम लिख के लेके आते हैं स्कैन मार के पीडीएफ जमा कर देंगे खत्म बात क्योंकि तुम्हारा ऑनलाइन लेके भी क्या फायदा तुम तो सबको पूछ के ही लिखोगे ना मतलब ऑनलाइन का क्या मतलब इससे अच्छा हमको बता दो हम एक ले लेंगे और खत्म करो बात वही ना मैं होती तो डायरेक्ट फिनिश करो बात को वाइवा नहीं हो रहा ना तुम्हारा वीडियो पे वीडियो ऑन करके लिखने का वीडियो तुम्हारे हिसाब से क्या है वीडियो तो तुम्हारे चेहरे पे है ना तुम नीचे क्या कर रहे हो हमको क्या पता वीडियो ऑन करना ऑफ करना कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे ऐसा रहना चाहिए तो फिर पापा मम्मी को पीछे बिठाओ फिर तुमको आगे बिठाओ फिर बात बनेगी मतलब फिर बड़ा मजा आएगा फिर तो बहुत ही बड़ा मजा आएगा सामने टीचर पीछे मम्मी पापा फिर फिर पता नहीं कितने लोग क्या क्या लिखेंगे अभी तो क्या है कैमरा ऑन रह के भी कुछ फायदा नहीं है कुछ लोगों का तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे पेपर रहता है सामने पेपर ही पेपर चिपका के रखा है मुझे पता है तुम लोग कैसे एग्जाम देते हो सच्चाई नहीं बता रही मैं मेरे को पता है सब खबर रहता है हाँ वही तो सैंडविच हो जाएंगे मतलब पीछे पापा आगे टीचर कुछ हो ही नहीं रहा है अभी कैसा फोन वोन करके भी तुम लोग लिखते हो मेरे को पता है आजकल क्या चल रहा है
वही वही व्हाट्सएप मैसेज, मेरे को पता है, सब पता है। 2 फोन यूज करते हैं, करेक्ट। मतलब टेक्नोलॉजी में कितनी चीजें पॉसिबल है, अभी आपको पूछना पड़ेगा कहाँ से कहाँ क्या कर सकते हैं। गूगल वॉइस, यस, गूगल बाबा, करेक्ट। तुम लोग चैट बॉक्स में इसका मैं स्क्रीनशॉट निकाल के रखूं। तुम लोग मुझे तरीके बता रहे हो यहाँ पे कि किस तरीके से हम आंसर्स लेते हैं। यस, कॉपी तो सब करते हैं, करेक्ट। रसिका का डायलॉग है, कॉपी तो सब करते हैं, अभी क्या फर्क पड़ता है। सब एक एक के घर पे जाके देते हैं, हाँ करेक्ट करेक्ट, ग्रुप लेते हैं, मुझे पता है कि ग्रुप में बैठ के एग्जाम देते हैं। ये भी मैंने देखा है, करेक्ट। हाँ, तुम लोग का तो सेपरेट ग्रुप भी रहेगा ना, शाने लोग, तुम लोग का तो सेपरेट ग्रुप भी रहेगा, मुझे 100% यकीन है। तुम्हारा भी व्हाट्सएप ग्रुप है, तुमने भी डुप्लीकेट किया रहेगा। नहीं पूछ रहे भाई, नहीं पूछ रहे, चलो। ओके, तेरे बिल्डिंग के नीचे सब लोग जमा होके लिखते हैं? ए दईसर वालों, दईसर वाले बिल्डिंग के नीचे एग्जाम देते हैं। टीम वर्क। आई गेट इट, आई गेट इट। ओके, सो द फर्स्ट, let's write the very first equation. So electric field जो है due to positive q, I'm writing it as, अब देखो दोनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, हमने E1 E2 नहीं पकड़ा है, इसलिए मैंने E लिखा है यहाँ पे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब ये डिस्टेंस क्या है, प्लस Q से अगर आप देखेंगे ये डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसका मतलब है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग दिस, रूट का रूट निकल गया वो स्क्वायर में। फिर द सेकेंड पॉइंट E डी टू माइनस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो इट्स जस्ट ड्यू टू माइनस क्यू विल ऑल्सो रिमेन सेम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। मतलब मैं क्या बता रही हूँ, वो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम ही पड़ने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस वाइज कोई यहाँ बड़ा या छोटा नहीं है, इक्वली असर पड़ रहा है। बिकॉज ये जो पॉइंट P है, it is equal distance from this and equal distance from this. I hope you're getting this. अब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम देके बताओ। थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर is going to be 2E cos theta. I hope you got that. It is 2E cos theta. अगर वो 2E cos theta है, कोई मुझे डायग्राम से बताएगा कि cos theta क्या है? Anybody among y'all who can tell me what is cos theta equal to? Let's take a triangle. Let's take this triangle. ये triangle ले लेते हैं. What is cos theta? ये वाला triangle ले लेते हैं, right angle triangle. What is cos theta? What is cos theta? Yes, adjacent upon hypotenuse. Very good. So can I say adjacent is L upon root of R square plus L square? चलेगा? तो cos theta क्या है? L upon under root of R square plus L square. Write it till this much, then I will proceed. Any doubt you can ask. If you have any doubt, you can ask.
Is it completed? या उसका भी सेम ही रहेगा, उसका भी सिर्फ डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, मतलब दोनों सेम ही है, वो रूट कैंसिल हो जाएगा। यस यस, हाँ इसमें भी, इसमें जैसा हुआ ना, इसमें जैसा हुआ सेम यहाँ पर भी होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब इट इज दोनों सेम ही दिखेंगे। वत्सल वेक्टर बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालना है, 4 वेक्टर आ रहे हैं अपने को, एक ऊपर एक नीचे, 2 लेफ्ट में आ रहे हैं, तो वेक्टर क्या कहता है, जो ऊपर नीचे है वो इक्वल और ऑपोजिट है, कैंसिल है, तो बचा क्या, 2e cos थीटा ना, e cos थीटा प्लस e cos थीटा। समझा वत्सल? लेफ्ट में 2 वेक्टर जा रहा है ना, तो दोनों वेक्टर क्या होगा, 2e cos थीटा, e cos थीटा प्लस e cos थीटा। समझा? Okay. So the net electric field now is, the net electric field now will therefore be equal to 2e cos theta. अब e तो दोनों का बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट। और आपका cos थीटा क्या आया था अपने को आया था l अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप इसको पहचानते हो क्या, 2q l p, वेरी गुड। सो ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p ऊपर आएगा अपॉन, ये इसका पावर 1 है, तो कैन आई से इट इज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 1 इंटू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू हाफ। अंडर रूट को कैसे लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, अंडर रूट को कैसे लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, एवरीवन नोज दिस इन मैथमेटिक्स। सो बेस दोनों का सेम है, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 3/2। देयरफॉर आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3/2। Everyone understood? This is for the point on the equator. Please write it down. Q2 और L को P ले लिया, r square plus l square raised to 1 एंड r square plus l square raised to हाफ है बेटा, वो स्क्वायर नहीं है। और रूट को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, अंडर रूट को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, रेज टू हाफ। ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ दिख रहा है क्या, एक रेज टू 1 है और अंडर रूट को मैथमेटिक्स में रेज टू हाफ लिखते हैं। सो जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, जब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होगा ना, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2। समझा? ये फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है। यस यस मैक। अच्छा वापस, कौन बड़ा है, आर की एल, कौन बड़ा है, आर की एल? यस, सो वापस वही डायलॉग लिखना है, क्या लिखते हैं हम हमेशा, एज r is greater than l,
Therefore, r square is very much greater than l square. So neglect किसको करना है? Neglect किसको करना है? l को निकाल दो. अगर हम l को निकाल देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर हमारा इक्वेशन जो हमें यहाँ मिल रहा है, ये इक्वेशन को क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू, जो इक्वेटर वाला हमें मिल रहा है, 1/4πε0 P अपॉन हमारा R रहेगा इंटू 3/2, राइट? सो क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? सो हाउ मच आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग इट एज 1/4πε0 P upon R cube. This is the electric field intensity at a point on the equator. Please write it down. Please write it down. Is this slide over? Manish wants the previous slide. Is this slide over, everybody? Previous slide. Can I change? L is very small, no, Pratham. Same reason as previous case. आपको बताया था ना, L तो डाइपोल के अंदर वो छोटा सा लेंथ है बिटवीन प्लस एंड माइनस, कंपेयर टू R वो, यस करेक्ट, कंपैरिजन R के साथ हो रही है ना. R तो क्या है, 1 मीटर हो सकता है, आधा किलोमीटर हो सकता है, और L तो बहुत ही छोटा होता है. L इज इन 0.00, तो हम L को निग्लेक्ट कर सकते हैं. और L का स्क्वायर करेंगे आप, 0.1 का स्क्वायर करेंगे आप, तो आपको क्या मिलने वाला है? यस, फर्दर कम हो जाएगा. ये स्लाइड हो गया. करेक्ट. दिस इज ओवर. अब आप लोग में से कौन बताएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कहां से कहा जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला, इज इट गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहा जा रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है राइट टू लेफ्ट. एवरीवन कैन सी इट. हमारा जो 2e cos थीटा है, उसका एरो डायरेक्शन कैसा है? इट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. वही तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो इसका मतलब है, दिस इज, इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन, दैट मींस इफ अ पॉइंट इज ऑन द इक्वेटर, द डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव q टू माइनस q, इज फ्रॉम पॉजिटिव q टू माइनस q. समझ रहे हैं? ये एक्सिस का डायरेक्शन कैसा था? माइनस टू प्लस. इसका डायरेक्शन क्या है? ये तो इस तरफ है, लेफ्ट में जा रहा है.
मतलब राइट टू लेफ्ट, सो इट इज फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, क्योंकि इसके नीचे कौन है, इसके नीचे प्लस है, हमेशा लेफ्ट में क्या रहता है, माइनस, सो इट इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। इट्स डायरेक्शन इज, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो हमने अभी दो डेरिवेशन किए हैं, एक ई एक्सिस, ई एक्सिस का डेरिवेशन इज 1/4πε0 2p upon r cube, direction is from minus q to plus q, parallel to dipole moment। दूसरा हमने किया है ई इक्वेटर वाला, विच इज 1/4πε0 p upon r cube, और इसका डायरेक्शन है फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू। इसमें कौन है बड़ा, किसका असर ज्यादा पड़ रहा है, कहां पर पॉइंट को ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, हु इज बिगर? वेरी गुड राज। यस, ई एक्सिस, कैन आई से इट इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटर? सेम हमने किया है मैग्नेटिज्म में, अगर आपको मैग्नेटिज्म याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इजी हो जाता है। ये एक्सिस पे, यानी कि एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो वो डबल है इक्वेटर के कोई भी पॉइंट से। हमेशा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इक्वेटर से हमेशा डबल होता है। यस सेम, यस महक, सेम लाइक मैग्नेटिक फील्ड, सो ई एक्सिस इज इक्वल टू इक्वेटर। अच्छा, अभी आप मेरे को बताओ, ये दोनों फॉर्मूला की तरफ देखो, क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं? डू दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ? डू दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ? yes or no? क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते? नो, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, आपको पता है ना, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्चुअल फॉर्मूला में आर स्क्वायर आता है, और यहाँ पे ड्यू टू डाइपोल, अगर हम लोग डाइपोल की बात कर रहे हैं तो हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब आ रहा है, राइट? हमारे यूजुअल फॉर्मूला में आर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट हमारा क्या है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, जबकि डाइपोल को पकड़ेंगे तो हमें आर क्यूब मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है आपको, इट्स अ एनसीईआरटी क्वेश्चन, कि which one will deplete faster, which one will deplete faster, मतलब कौन सा जल्दी कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें जल्दी कम होगा? हम डाइपोल की बात करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला है, सेकेंड वाला। हम डाइपोल की बात करते हैं तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है, राइट? तो इसमें से कौन सा वाला जल्दी खत्म होगा? एक्सेस इक्वेटर नहीं, ये पूरा डाइपोल में दोनों में आर क्यूब आ रहा है, इसमें भी आर क्यूब है, इसमें भी आर क्यूब है, राइट? किसमें असर, किसका असर जल्दी खत्म होगा? जिसका डिनोमिनेटर क्या है, आर क्यूब है, इसका इफेक्ट, मतलब डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो कम होगा, और ये वाला किसका है? आपको याद है ये कब हुआ था? टेस्ट चार्ज, याद है? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है? सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है कंपेयर टू डाइपोल। डाइपोल के डिनोमिनेटर में आपको आर क्यूब आ रहा है, इसका ये मतलब है डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू अंडरस्टैंडिंग? उस वो जल्दी खत्म हो जाता है बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो अगर एक ही पॉइंट पे
अगर मुझे टेस्ट चार्ज की वजह से देखना पड़ा या सोर्स चार्ज की वजह से देखना पड़ा या डाइपोल की वजह से देखना पड़ा, तो आपको समझना है कि डाइपोल वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो कम होगा कंपेयर टू अ सिंगल चार्ज। याद रहेगा? So they say this line, they say that in case of dipole, the electric field depletes faster. In case of a dipole, the electric field depletes faster. In case of a dipole, the electric field depletes faster. Yes. Is it over? I have a one small derivation left. Do you have the energy? I have a small derivation left. Okay, somebody wants the previous slide. वेरी स्मॉल डेरिवेशन, कुछ है नहीं उसमें। हमने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी आपको बताया है, उसको सिर्फ 3 लाइन में है, 3 लाइन ही लिखना है। या हाउ इज द जोश? वेरी गुड रसिका, यू आर अ एटम बॉम्ब यार, मतलब एकदम पटाखा है, एकदम पटाखा मारती है। या यस, या डायलॉग क्वीन सानिया कदम से, शी इज द डायलॉग क्वीन। ओके, no, I think Rasika, the whole batch is supporting you. It's not me alone. I can see so many dialogues. Yes, so 3 lines. Yeah, so Prathamesh Shetty saying in all lectures. Yes, yes. In all lectures, she'll say something. Yeah. So right now she said, how's the Josh? Very high, she said. Okay. So can I just finish off the last one? Okay. Jadhav. Okay. So let's finish off the last one, if you don't mind. It's a very simple expression. Write down. वैसे तो upload हो चुका है. I have put the lecture. Please subscribe to my channel. I've kept it on unlisted, but I will put it to public in case you face any problem. But if you click the link, obviously it will come. Expression for torque acting. Yeah, so if you, the reason I'm telling you to subscribe is in case you have any doubt, I can always put the video, for you. So the doubt video can always be put. So torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. Placed in a uniform electric field. Please write the heading and draw this very fast. कुछ भी नहीं है इसमें, ये electric field है अपना. So I can say that this is our electric field. Uniform electric field है अपना, और ये E bar है. Electric field आपको पता है originates from positive charge, यानी कि यहाँ पे हमने कुछ पॉजिटिव रखा हुआ है या नेगेटिव रखा है, तो दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रिक लाइंस मिलेंगे. अब हम एक डाइपोल ले रहे हैं, मतलब और थोड़ा सा एंगल बना के उसको रख रहे हैं. मतलब आपका जो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, ये इस तरीके से एंगल बना के रख रहे हैं. सो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड इट इज केप्ट एट सम एंगल, और ये एंगल क्या है? थीटा.
ये हमारा थीटा है. I hope you're getting this. And once you get it, this plus q gets attracted to this minus. प्लस क्या होगा, माइनस से अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि यहाँ फोर्स लगेगा. एग्रीड. क्या होगा फोर्स, QE. QE लगेगा, यस और नो. और ये जो माइनस है ये प्लस से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक फोर्स आएगा. आई कैन कॉल इट एज माइनस एफ ऑल्सो, राइट. माइनस एफ बोल सकते हैं बिकॉज माइनस QE. तो एक प्लस QE, एक माइनस Q. वैसे भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं. इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस क्या बनाते हैं, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस क्या बनाते हैं, एनीबॉडी. इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस क्या बनाते हैं. यस, आई कैन सी एवरीबॉडी आंसरिंग. कपल, दैट इज टॉर्क. टॉर्क बनाएंगे, यस और नो. कपल फॉर्म होगा, टॉर्क होगा. सो यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो आपको कब से मैं वही बता रही हूँ. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2L. हमेशा 2L है. डाइपोल में माइनस और प्लस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, यस. और जहां टॉर्क होता है देयर शुड ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो कौन सा लेना है यहाँ पे, इसको स्ट्रेच करने का, ये कंस्ट्रक्शन है, और इसको यहां से स्ट्रेच करने का. समझ रहे. एक्सटेंड दिस फ्रॉम हियर, एक्सटेंड दिस फ्रॉम हियर एंड एक्सटेंड दिस फ्रॉम हियर. तो चार्ज जो है, ये जो माइनस Q है प्लस Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है. D is the distance, that is the perpendicular distance from minus Q and plus Q के बीच का, वो perpendicular distance है. हो गया, खत्म है डेरिवेशन. ये कंस्ट्रक्शन आ गया, मतलब सब कुछ आ गया. टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको D बोलते हैं. फोर्स कितना फॉर्मूला है, QE इनटू, कोई मुझे बताएगा D क्या है. इफ दिस एंगल, ये जो एंगल बना रहा है, लेट्स से दिस इज थीटा, सब थीटा ही है. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है. तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. यस. सो व्हाट इज D, what is D? D is nothing but 2L sin theta. D is nothing but 2L sin theta. I hope you understood this. अब वापस सवाल उठता है, वापस सवाल उठता है, आपने Q, 2 और L को पहचाना, कौन है ये, Q और 2L क्या है, P है. वेरी गुड. Q और 2L क्या है, P है. तो क्या हो जाएगा ये, PE sin theta. क्या हो गया ये, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा. गॉट इट. अगर P sin थीटा है तो वेक्टोरली हम टॉर्क को कैसा लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट एज P बार क्रॉस E बार, बिकॉज जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ही तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है. सो कैन आई राइट इट एज P बार क्रॉस E बार. यस एवरीबॉडी. I can write it as the cross product of P bar and E bar because torque is also a vector quantity. I can write it as P bar and E bar का expression. Okay, now tell me कौन से एंगल पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, कौन से एंगल पे टॉर्क मैक्सिमम होगा. आप समझो टॉर्क क्यों लगेगा, क्योंकि हर चीज को वो इक्विलिब्रियम में पुश करने की कोशिश करेगा. यस, वेरी गुड वेरी गुड. थीटा जब 90 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1. इसका मतलब क्या है कि अगर ये डाइपोल के बीच का एंगल 90 होता, मतलब वो ऐसा वर्टिकल खड़ा रहता, तो क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसको अपने डायरेक्शन में खींचेगा. यू नो, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. जब हम फोर्स लगा के यहाँ बोल रहे कि ये घूमने वाला है, याद है ऐसे घूमता है वो, अगर घूमेगा तो उसका मेन चीज याद है, लास्ट टाइम आपको बताया था, जमा होता है सरफेस के दोनों साइड में, वो क्या हो रहा है, जमा हो रहा है. जहां प्लस है वहां माइनस वाला साइन जमा हो जाता है, जहां माइनस है वहां प्लस वाला साइन जमा हो जाता है. तो हमेशा अपने
टॉर्क को घुमाएगा, अपने डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो आप वहां लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज 0 then the torque is 0, when theta is 90 the torque is maximum. 0 और कौन से एंगल पे टॉर्क 0 होगा? यस यस, मिनिमम होगा। अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल है वो एक ही लाइन में है तो टॉर्क कम होगा, किसको पुल पुश करेगा ना। यस, 180 हो या 0 हो। सो प्लीज राइट इट डाउन, इफ थीटा इज 0 और 180 टॉर्क इज मिनिमम। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, टॉर्क महसूस ही नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा। जबकि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और टॉर्क ये ऐसा रखा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू इधर, तो 100% ये एक्सपीरियंस क्या करेगा? मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई। Sine of 90 is 1, so it is QE. Tau max is equal to PE. Sorry, QE नहीं, PE. Sorry, PE. PE sin थीटा होता है ना। प्रीवियस स्लाइड चाहिए। हाँ हाँ, 270 पर भी बोल सकते हैं। यस, 270 या 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और 0 या 180 पे 0 होगा। इट्स लाइक एन इनवर्स जे। टी नहीं है वो, टाउ है, टाउ टाउ टाउ। इनवर्स जे, करेक्ट। टाउ टाउ। पार्ट 1 में कहीं तो टॉर्क नहीं आया क्या? कभी तक, अभी तक टॉर्क नहीं आया आपकी लाइफ में? लॉ ऑफ मोशन में आया रहेगा ना टॉर्क। कपल टॉर्क, यस, लॉज ऑफ मोशन में आता ही है। ये लिख दिया आप लोगों ने, टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मिनिमम। 90 पे टॉर्क विल बी पीई, फोर्स इज क्यूई, टॉर्क इज पीई। ओके, इज इट डन? प्रथम 40। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलो, टेक केयर देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।